Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to speech processing. In our last lecture, I hope you remember that we began our journey with simple compression waves, and then we observed some properties of those pressure waves, those compression waves, those longitudinal waves, and we saw that the actual particles which make up that transfer of energy from one place to another, those particles were following a to and fro motion, simple harmonic motion. So we studied the simple harmonic motion in a little bit of detail, and then we observed that the simple harmonic motion, when plotted over time, produces sines and cosine waves. Um, and we also observed that these are essentially sine and cosine are just the projections of uniform circular motion, whether they are projected on the vertical axis or the horizontal axis, which obviously is a relative way to speak about them. But anyhow, you get the idea. So, and then from there onwards, we started looking into the actual plot of that circle. We looked at the e raised to the power uh, I omega equation, so the Euler's equation, and also the Euler's formula and the Euler's identity. We looked at both of those. We tried to understand them in some amount of detail. The one thing that we did not do towards the end of the last lecture, because we were out of time, um, was actually implementing it. ये हमने पिछली दफ़ा नहीं किया था, and I know कि for thorough understanding that is also important. So what I'm going to do at the beginning of this lecture, I'm just going to finish off the last lecture in just 2 slides. The first one is basically just me showing you a MATLAB script. By the way, MATLAB install कर लें. As I understand, ये आपके इसका license आपके campus wide हमें available है. So you should not have much trouble installing it. You would need MATLAB for some of the assignments as well. तो MATLAB इंस्टॉल कर लें. जो मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट मैं साथ अपलोड भी कर दूंगा फोल्डर के अंदर. यू कैन फील फ्री टू प्ले विद द स्क्रिप्ट. इट्स गोइंग टू जस्ट बेसिकली प्लॉट whatever we discussed last time, और मैं साथ साथ फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या चीज़ है. एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट टॉक अबाउट वन पॉइंट फ्रॉम लास्ट स्लाइड, लास्ट लेक्चर, जिसको हमने ऑल्दो डिस्कस किया था, लेकिन आई वुड वांट कि मैं उस पर एक दफ़ा और बात कर लूँ, क्योंकि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स कभी कभी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड देन विल स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. सो लेट्स बिगिन जी. So let's watch our e raised to power 2 pi ft in action. This is a very simple, short MATLAB script जिसके अंदर हम बेसिकली 3 चीज़ों को प्लॉट कर रहे हैं. सो लेट मी बेसिकली वॉक यू थ्रू दिस एंड देन आई विल शो यू कि इसमें क्या हो रहा है. मैंने इसमें थोड़ा सा इसको एनिमेट कर दिया था ताकि we can basically see our circles basically being created, and also the projections on the vertical and horizontal axes also being created. तो ये सबसे ऊपर हम जो है यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं from 0 to 2 with 500 steps in between this. और ये दूसरी लाइन के अंदर we are just calculating this f based on this vector t, and we have this 2 pi. This 2 is the frequency, so मैंने इस पर इसकी frequency जो है वो 2 Hz रखी हुई है. एंड दिस 1i इज़ essentially, सो MATLAB आपको मालूम होगा कि i और j को यूज़ करती है फॉर इमेजिनरी. तो लेकिन उसमें मसला ये होता है कि क्योंकि हम अक्सर अपनी कोडिंग के अंदर i और j को इंडिसेस के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, फॉर i इज़ इक्वल टू ब्ला एंड सो ऑन. तो उसकी वजह से MATLAB रिकमेंड करता है कि आप जो है वो i की जगह 1i यूज़ करें. So that's why we have a 1i here. So exp, so this is e raised to power 2 pi f, and this is your I and this is your t. And then in this loop, essentially, we are basically just plotting the whole thing. So this is the real versus imaginary thing against time. तो ये आपको एक सर्कल बनता हुआ नज़र आएगा. वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से होगा. दूसरी चीज़, आपको ये इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग प्लॉट होता हुआ नज़र आएगा. इनको बेसिकली ये 1.5 और 2 जो मूव किया है ना, वो सिर्फ इसलिए किया है कि ये मेरे एक्सिस की डायमेंशंस हैं, और मैं नहीं चाह रहा था कि सेंटर में बिल्कुल प्लॉट हो जो सर्कल बन रहा है उसके बीच में, वरना साइन और कॉस बन जाती. तो वो इनको नीचे पुश कर दिया है एक्सीज के ऊपर. एंड दैट्स बेसिकली इट. ये फॉर लूप के अंदर जो है ये पॉज लगाया हुआ है ताकि आपको वो एक सॉर्ट ऑफ लाइक एनिमेशन नज़र आ जाए. सो विल वॉच दिस हैपनिंग. इसमें एक चीज़ बस और नोट कर लीजिए कि मैंने ये विद टाइम किया है, तो यू वोंट सी अ सर्कल, यू विल सी अ स्पायरल. तो सर्कल बनेगा लेकिन ओवर टाइम बनेगा, तो वो एक स्पायरल की तरह आगे बढ़ता जाएगा. एंड दैट्स ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग विजुअलाइजेशन टू कीप इन योर हेड्स. So this is basically, you see the blue circle in the center which is spiraling, and then on the left axis, on this axis, you see your sine wave getting produced, and this is your cosine which started with a 1, and then it will because we have just 2 seconds जिसके अंदर हम इसको
जिसके ऊपर प्लॉट कर रहे हैं, तो हमारे पास 4 यहाँ पे टोटल जो हैं वो वेव्स आएंगी. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन सी हियर. अब आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं और जगहों से भी देख सकते हैं. दिस इज़ अ 3D प्लॉट. तो यू कैन सी हियर कि अगर हम पीक टू पीक जाएं तो 1 2 और ये सो बेसिकली 4 आपके पास वेव्स हैं यहाँ पर. एंड सिमिलरली यू कैन सी इट हियर एज वेल. तो ये सर्कल ही बनता, अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं 0 के ऊपर तो ये इसको सर्कल बना देगा, लेकिन आई बेसिकली प्लॉटेड इट ओवर टाइम, तो वो इसने इसको स्पाइरल बना दिया. तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग विजुअलाइजेशन टू हैव. अगर मैं स्पाइरल को बिल्कुल सही अरेंज करूँ इस तरह करके, तो आपको इसके अंदर भी वो साइन और कोसाइन नज़र आने लगेंगे. इसको साइड से देखें या इसको ऊपर से देखें. सो नाउ यू कैन सी अ कोसाइन हियर, एंड इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम हियर यू सी अ साइन हियर. तो इसको बिल्कुल अगर इसके सामने अरेंज कर दें तो आपको परफेक्ट साइन नज़र आना शुरू हो जाएगा. तो जस्ट कीप ऑल ऑफ दीज विजुअल्स इन योर हेड व्हेन यू वर्किंग विद दीज थिंग्स, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो कि हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं. कहीं से देखो तो वही चीज़ सर्कल है, कहीं से देखो तो उसकी प्रोजेक्शन है, साइन है और कोसाइन है, एंड सो ऑन. ऑल राइट जी. सो प्लॉट आपने देख लिया. स्क्रिप्ट मैंने फोल्डर के अंदर इसके साथ मैं रख देता हूँ ताकि आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकें. जस्ट ट्राई changing the frequency, try changing the time period. By time period I mean like the total time over which you're plotting it. See what happens, and then tweak the script, take it to interesting places, and just play around with it. अच्छा जनाब, दूसरी एक चीज़ हमने लास्ट टाइम बात की थी और उसमें कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं व्हेन वी कन्वर्टेड फ्रॉम योर from the omega notation to your traditional frequency notation. So essentially सिर्फ उसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी. The frequency of a rotating object is just the number of complete turns, number of full circles जो वो किसी amount of time में कर रही है. So for example number of full circles per second. ठीक है. Angular frequency जिसकी हमने बात की थी ओमेगा की, it just expresses the number of turns in terms of radians. ठीक है. सो एक फुल सर्कल के अंदर हम 2 पाई रेडियंस जो है वो कवर कर रहे होते हैं. ठीक है. ये चीज़ हमने पिछली दफ़ा काफ़ी तफसील से देख ली थी. सो इफ़ यू जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ सर्कल्स पर सेकेंड विच इज़ एफ by 2 pi you get the number of radians per second which we call the angular frequency. तो इसमें कोई w is equal to 2 pi f के अंदर कोई मुश्किल बात नहीं थी. It was a simple and straightforward thing. तो I just thought कि मैं एक दफ़ा रिवाइज ये करवा दूँ ताकि आपके जहन में इसके बारे में कोई शुबा ना रहे. At this point I don't want any confusions that you should carry forward with you, because आगे जाकर हमने काफ़ी नई चीज़ें करनी है, तो अभी से ही अगर बेसिस वीक होंगी तो आपको फिर मुश्किल हो सकती है. अच्छा जनाब. ऑलराइट. इस चीज़ का मैंने बहुत शुरू में आपसे कहा था कि हम किसी पॉइंट पर आकर जितनी भी एंटिटीज़ हैं हमारे लिए इंटरेस्टिंग हैं, फॉर एग्जांपल योर वेवलेंथ और पीरियड या फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड या टाइम या डिस्टेंस, इनके हम यूनिट्स को एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे और ये देख लेंगे कि हम इनको मेजर किस तरह से करते हैं. सो लेट्स क्विकली रिव्यू दीज यूनिट्स विच आर यूज्ड फॉर दीज वेरियस एंटिटीज़ ऑफ इंटरेस्ट. फ्रीक्वेंसी या ट्रेडिशनल फ्रीक्वेंसी के लिए वी गोना यूज़ द सिंबल एफ, और उसके लिए हम उसको मेजर करेंगे साइकिल्स पर सेकंड में या सर्कल्स पर सेकंड में जैसे हमने देखा था, या हर्ट्ज के अंदर. ठीक है. सो ये हमारा सिंपल फ्रीक्वेंसी का हो गया. अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी होगी तो हम उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ओमेगा से, और रेडियंस पर सेकंड के अंदर उसको मेजर कर रहे होंगे. फॉर डिस्टेंस या फॉर वेवलेंथ लैम्डा, डिस्टेंस को यूजुअली मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ. सो डिस्टेंस एस या वेवलेंथ लैम्डा के लिए, दोनों के लिए हम यूजुअली मीटर्स यूज़ करते हैं या कोई और डिस्टेंस का यूनिट यूज़ करते हैं. फॉर टाइम पीरियड कैपिटल टी, या फॉर टाइम टी हम सेकेंड्स यूज़ करते हैं. फॉर एम्पलीट्यूड, अब यहाँ हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं. सो इट डिपेंड्स कि हम साउंड को किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं. उसको एज अ प्रेशर वेव देख रहे हैं, उसको एक पावर ट्रांसफर्ड या एनर्जी ट्रांसफर्ड को देख रहे हैं, उसकी पावर को देखना चाहते हैं, उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसके वोल्टेज को देख रहे हैं, किस चीज़ को देख रहे हैं. सो मैं आपको जो वेरियस इंटरेस्टिंग इसमें यूज़ होते हैं एम्पलीट्यूड्स में उनका जिक्र कर देता हूँ, और वो फिर मौके की मुनासबत से आप उनमें से डिफरेंट को देखते रहेंगे. सो वन इज़ योर डिस्प्लेसमेंट. सो अगर हम खाली एक सब्सटेंस या फिजिकल मटेरियल को देखते हैं, फॉर एग्जांपल पानी है और उसके पार्टिकल्स कितना अपनी मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे जाते हैं, या जैसे एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग अपनी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना ऊपर और कितना नीचे मूव करती है. साउंड के मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन से एयर मॉलिक्यूल्स कितना आगे पीछे उनको साउंड मूव करवाती है. तो इसमें आप डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स देखेंगे, जिसमें आप कभी कभी मीटर्स या यानी लेंथ की यूनिट्स भी आपको नज़र आएंगे. दूसरा जो हम अक्सर यूज़ करते हैं मेजर, वो है साउंड प्रेशर का या अकूस्टिक प्रेशर का. So this is the deviation in pressure from the mean position. So this is your mean pressure.
इन दिस केस, ये आपका मीन या इक्विलिब्रियम या एवरेज प्रेशर है, और ये इसका मैक्सिमम वेरिएशन है। सो हम इस पूरे जो इस वर्टिकल एक्सिस है इसको हम प्रेशर के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं प्रेशर की डायमेंशन के तौर पर, और देख सकते हैं कि साउंड वेव हमारी कितना प्रेशर जनरेट कर रही है, कितना मैक्स है, कितना मिन है, किसके बीच में वेरिएशन है। ठीक है, तो अगर हम ये कर रहे हो तो हमारा यूनिट जो है वो पास्कल होता है, और 1 पास्कल इज़ 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। सो एक न्यूटन की फोर्स जो है वो एक स्क्वायर मीटर के एरिया के ऊपर लग रही है, दैट्स 1 पास्कल। तो अगेन जस्ट टू क्विकली रिव्यू, ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, आई जस्ट वांट to review everything on one slide कि 1 Newton is the force needed to accelerate a mass of 1 kilogram at the rate of 1 meter per second squared in the direction of the applied force। तो ये basically यहाँ से आ रहा है, so that's 1 Newton। so 1 Newton की force जब 1 meter square के area पर लगती है तो we call that 1 Pascal of pressure। एक और यूनिट जो हम काफ़ी आप होता यूज़ देखेंगे वो है साउंड पावर का या साउंड अकूस्टिक पावर का। सो द रेट एट विच साउंड एनर्जी इज़ ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड या एमिटेड या रिसीव। तो ये किसी भी एंगल से देखा जा सकता है, एमिशन पे देखा जा सकता है, रिसेप्शन पे देखा जा सकता है, रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन पे देखा जा सकता है, कहीं पर भी हम रेफरेंस रख के देख सकते हैं कि अकूस्टिक पावर या साउंड पावर इसकी कितनी है। व्हेन वी यूज़ power as the amplitude measurement mechanism, our unit is watt, and watt is basically the energy transfer of 1 joule per second, and joule आपको याद होगा energy या work का unit है, which is essentially equal to the energy transferred या work done on an object when a force of 1 newton acts on that object in the direction of the force's motion through a distance of 1 meter। so 1 newton meter, एक न्यूटन की फोर्स 1 मीटर चला दे चीज़ को, ये 1 न्यूटन मीटर जो है वो 1 जूल है, और 1 जूल पर सेकेंड आपका वॉट है। इसी तरह एक और जो इसका मेट्रिक आप यूज़ होते देखेंगे एम्पलीट्यूड को मेजर करने के लिए, वो साउंड की इंटेंसिटी है या अकूस्टिक इंटेंसिटी है। So that's the power carried by sound waves per unit area in a direction perpendicular to that area। ये by the way unit हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आगे जाके हम इसे तफसील से भी देखेंगे, but this is basically power per unit area। so the power carried by sound waves per unit area। ठीक है, जब हम ये यूज़ करेंगे तो हमारा एक यूनिट तो कम से कम इसमें वॉट होगा। so watt per, so not just watt, watt per square meter, यानी कितनी पावर जब उस एरिया में से गुजर रही है तो वो कितनी है। so watt per square meter is our first unit। इसी के लिए हम एक और यूनिट भी यूज़ करते हैं जिसको ज़्यादा मुनासिब होता है कि हम उसको साउंड इंटेंसिटी की जगह साउंड इंटेंसिटी लेवल कहें, ऑल्दो कि उसको आमतौर पे साउंड इंटेंसिटी भी कह दिया जाता है। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल या अकूस्टिक इंटेंसिटी लेवल, सो दैट्स अ रिलेटिव मेजर। so it's a logarithmic quantity of the intensity of sound relative to the reference value। commonly इसको हम I naught से indicate करते हैं इस reference value को, और it is taken to be 1 picowatt per meter square। अच्छा, अब ये हमने आगे जाकर तफसील से पढ़ना है, तो इस बात में अभी कंफ्यूज ना होइएगा। हम बस सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि वो सबसे हल्की आवाज़ जो ह्यूमन सुन सकते हैं परसेप्चुअली, और वी हैव थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन हमें मालूम है कि वो तकरीबन 1 पिकोवाट पर मीटर स्क्वायर है। हम ये देखना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर आवाज़ उससे कितनी ऊंची है। सो बजाय इसके कि हम एब्सोल्यूट टर्म्स में वॉट पर मीटर स्क्वायर के अंदर देखें कि इसकी कितनी जो है वो इंटेंसिटी है, हम रिलेटिव इंटेंसिटी देखते हैं रिलेटिव टू द मिनिमम साउंड दैट वी कैन हियर। और अगेन जब उसको देखते हैं तो उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम ये आते हैं कि वो स्केल बहुत बड़ा होता है। सो द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम ऑन दैट स्केल एंड द मैक्सिमम साउंड ऑन दैट स्केल इज़ वेरी लार्ज। सो ऐसे केस में हम आगे जाकर आज रिव्यू करेंगे कि लॉगरिदम्स हमारे रेस्क्यू के लिए आते हैं। सो वी गोना यूज़ अ लॉगरिदमिक स्केल, और बेसिकली इसको हम बेल स्केल या डेसीबेल स्केल कहते हैं। ये जो सबसे मिनिमम साउंड है ना, ये आगे इसकी बात होगी कि दिस इज द लोएस्ट साउंड हियरेबल बाय एन अनडैमेज्ड ह्यूमन ईयर अंडर रूम कंडीशंस, और ये फिर हम ये देखेंगे कि ये कितनी हल्की होती है, तो वो उसकी बात हम आगे जाकर करेंगे। बट दैट इज नोन एज आई नॉट, दैट्स द रेफरेंस इंटेंसिटी, द मिनिमम साउंड, द लोएस्ट साउंड इंटेंसिटी हियरेबल बाय एन अनडैमेज्ड ह्यूमन ईयर अंडर नॉर्मल रूम कंडीशंस। ठीक है जी, 1 पिकोवाट पर मीटर स्क्वायर, ये बस आपने याद रखना है कि कितनी होती है, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी फिर डेसिबल स्केल के ऊपर। तो इसकी यूनिट्स नेपर्स भी हैं, बेल्स भी हैं। बेल काफ़ी बड़ा यूनिट होता है तो इसको हम नॉर्मली डेसीबेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये इसके यूनिट्स यूज़ होते हैं। So this is basically the simple conversion। so basically your bell is equal to 10 decibels, and again it is equal to, ये conversion आपको नेपर की भी नज़र आ रही है। usually ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, we're going to stick with bells and decibels। ठीक है जनाब। और एक आखिरी यूनिट जो हम आपको यूज़ करते हुए नज़र आएंगे जिस वक्त हम चीज़ों को अपनी वेव फाइल में ले आएंगे और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात कर रहे होंगे, तो उस वक्त हम इसकी यूनिट्स के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज की भी बात करेंगे। सो वोल्ट्स में भी मेजर करेंगे, और बल्कि बहुत इंटरेस्टिंगली
हम इसको बिट्स में भी मेजर करते हैं, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया लेकिन हम इसको बिट्स में भी मेजर करते हैं, और ये तब होता है कि हम कितने बिट्स के अंदर उस साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो उस पॉइंट पे जाकर फिर हमारा एम्पलीट्यूड जो मेजरमेंट है वो नंबर ऑफ बिट्स में भी चला जाएगा। सो दैट्स वाई आई सेड, आपको याद हो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में, कि एम्पलीट्यूड के एक्सेस को मैं अभी उसका जिक्र नहीं करता उसकी बात निकलेगी तो फिर ज़रा दूर तक जाती है। अच्छा जनाब, ऑलराइट जी, सो जिस तरह से स्पॉइलर अलर्ट होता है ना, उस तरह से एक चीज़ होती है फन अलर्ट। सो फन अहेड अब सो दिस इज माय फन अलर्ट टू यू। नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट फन स्टफ। तो अगर आप इस वीडियो को कोई 2x 3x 5x, अब तक तो पता नहीं आपकी कैपेबिलिटीज़ तेज़ सुनने की कहाँ तक पहुँच चुकी होंगी, तो उस पर अगर आप सुन रहे हैं तो स्लो डाउन कर दें। अगर 7 और 5-6 काम भी कर रहे हैं, 2-3 और लेक्चर्स भी सुन रहे हैं, उसके साथ आप गाड़ी भी चला रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, कोई जहाज़ भी उड़ा रहे हैं, आई डोंट नो क्या क्या कुछ कर रहे हैं, तो वो सब कुछ रोक कर तवज्जो से इधर आ जाएं, बिकॉज वी आर अबाउट टू टॉक फन स्टफ। अच्छा जनाब, ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज का एक एक्सपेरिमेंट आपको याद है जो मैंने आपको शुरू में करवाया था, राइट? जिस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने आपको 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुनाई थी, और उसके अंदर हमने देखा था कि हम मुख्तलिफ पॉइंट्स पे सुनना बंद हो जाते हैं, 20 से नीचे हमें नहीं सुनाई दे रहा था। अच्छा, याद रहे कि फ्रीक्वेंसीज को हम मेजर कर रहे हैं हर्ट्ज के अंदर, विच इज़ लाइक वाइब्रेशंस पर सेकंड या साइकिल्स पर सेकंड, या वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफेक्शन पर सेकंड, ठीक है ना? तो एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन मिलके एक हमारे पास पल्स बन रहा है, एक हमारा साइकिल बन रहा है, ठीक है? तो ह्यूमंस की जो रेंज है जिसकी हमने बात की थी, दैट इज रफली डिफाइंड टू बी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। उससे नीचे की फ्रीक्वेंसीज को हम इंफ्रासोनिक्स कहते हैं, और उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को हम अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये दोनों लिमिट्स फिक्स नहीं हैं। Under specific lab conditions and at high enough volumes, humans can hear less than 20 hertz. And when they cannot, these frequencies can resonate, और resonance मैंने आपको पढ़ानी है, with various parts of the human body, और हम उसको फील कर सकते हैं। सो 20 हर्ट्ज से नीचे हम अगर सुन ना भी सकें, एट हाई इनफ वॉल्यूम अगर आवाज़ चल रही है तो वी कैन फील इट, और अभी इसकी बात करते हैं। और दूसरा अल्ट्रासोनिक्स हैं, अंडर लैब कंडीशंस हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर भी सुन सकते हैं। वैसे तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस तो आपने देखा था 15 के ऊपर ही हमें सुनाई, मुझे तो नहीं दे रहा था, आपको, आप में से शायद किसी को दे रहा हूँ, लेकिन ये है कि एंड द साउंड वॉज देयर, द एक्सपेरिमेंट बेसिकली जो है ना, उसने इस चीज़ को ज़रूर एलिमिनेट कर दिया था, रूल आउट कर दिया था कि ऐसा नहीं है कि आवाज़ ही नहीं आ रही। बट खैर, एनी हाउ, सो ह्यूमंस की जो हियरिंग है इन एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर रफली इस रेंज में है, विच कॉरेस्पॉन्ड्स रफली टू वेवलेंथ्स ऑफ 17 मीटर्स टू 1.7 सेंटीमीटर्स एट रूम टेम्परेचर। ये भी याद रहे, रूम टेम्परेचर मैंने इसलिए कहा है क्योंकि वेवलेंथ निकालने के लिए हमें स्पीड ऑफ साउंड चाहिए होगी, वो जाहिर है टेम्परेचर और प्रेशर के साथ रिलेटेड है। तो अब ये भी याद रहे कि हम अक्सर समझते हैं जब वेवलेंथ्स की बात करते हैं कि पता नहीं हम नैनोमीटर माइक्रोमीटर वेवलेंथ्स की बात कर रहे हैं, नहीं, दिस इज लाइक वेवलेंथ्स ऑफ 17 मीटर्स फॉर योर लो फ्रीक्वेंसीज। सो यानी कि बहुत 17 मीटर का के ऊपर जो है वो आपका एक रेयरफेक्शन प्लस एक कंप्रेशन है, अप टू लाइक 1.7 सेंटीमीटर्स फॉर द वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज जो हम सुन सक रहे हैं, ठीक है? तो एक बात तो ये जहन में रहे कि ये वेवलेंथ्स काफ़ी बड़ी बड़ी। दूसरा, इंफ्रासाउंड्स का हम पर इम्पैक्ट क्या होता है, अब उसकी बात ज़रा करते हैं। सो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंफ्रासोनिक्स जो कि हम अक्सर सुन नहीं पाते अगर ऊंचे वॉल्यूम पर चल रही हों, तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल आई बॉल्स, फॉर एग्जांपल द एयर कॉलम विद इन आवर लंग्स, ये इंच, या हमारा डिजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारी आंतें, हमारा मैदा, इसके साथ रेजोनेट करने लगती हैं। और जब वो रेजोनेंस होती है और ये चीज़ें जो है वाइब्रेट करती हैं इन रिस्पॉन्स टू दीज फ्रीक्वेंसीज, वी गेट सर्टेन इमोशनल इम्पैक्ट्स, जिसके अंदर कॉमनली रिपोर्टेड इम्पैक्ट्स जो हैं दे इंक्लूड डिजीनेस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, सिकनेस एज अबाउट, जैसे वॉमिट आने वाली हो रही है, और द फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, कुछ बुरा होने वाला है। इसी तरह से इसके अंदर ये भी है कि, और अगेन यहाँ से आगे अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा अब उस जोन में है कि जो जहाँ से साइंस की कोई बाउंड्रीज आ जाती हैं और कहीं कुछ इसके आसपास ही सीरियस साइंस भी शुरू हो जाती है, बट देयर इज सेंस इन दिस, यानी जो बात है वो समझ में आती है, वो ये है कि जो बहुत सी जगहों पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिपोर्ट होती है, उनमें से कुछ जगहों पर, एंड नाउ मैं नीचे ये आर्टिकल्स आपको काफ़ी सारे दिए हुए हैं, उनमें से कुछ जगहों पर प्रेजेंस ऑफ इंफ्रासोनिक्स पाई जाती है। सो यानी वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी, कोई जिन भूत नहीं था, इट सिंपली वॉज कि कोई इंफ्रासोनिक साउंड मौजूद थी जिसपे लेट से आपकी आई बॉल्स वाइब्रेट करना शुरू हो गई, रेजोनेट करना शुरू हो गई। व्हेन द आई बॉल्स आर वाइब्रेटिंग,
अब आपका रेटिना क्योंकि वाइब्रेट कर रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू गोना सी कलर्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू गोना सी ब्लाइंड स्पॉट्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू गोना सी दोज फ्लैशेस, जैसे वो आंख को कभी यूं करके दबाएं तो वो रेटिनल डिटैचमेंट शुरू हो जाती है और आंखें जो हैं वो उसके अंदर आपको तारे घूमते हुए नजर आते हैं। या आई बॉल जब वाइब्रेट करती हैं तो अपने पेरिफेरल विजन से आपको चीजें हिलती हुई नजर आ रही होती हैं। दिस लीड्स टू एंड इन एडिशन टू दैट आपका जो है वो लेट्स से आंतें भी वाइब्रेट कर रही हैं, एंड दैट टोटल थिंग गिव्स अस अ फीलिंग कि यार कुछ खराब है, कुछ अच्छा नहीं है। तो लोग ये जो फीलिंग्स रिपोर्ट करते हैं, और बाय द वे ये साउंड्स आती कहाँ से हैं? ये साउंड्स आ सकती हैं फॉर एग्जांपल मेल फंक्शनिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, लेट्स से फैंस वगैरह से। ये आ सकती हैं पुरानी बिल्डिंग्स, या जैसे बड़ी बिल्डिंग है उसके अंदर से हवा जब विसल करके गुजर रही है अगर उसके अंदर, उससे इंफ्रासोनिक्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। ये एनिमल्स की ग्राउल्स से प्रोड्यूस हो सकती हैं। सो साइबेरियन टाइगर की जो रोर है उसमें बहुत से लो नोट्स हैं। लेट मी बेसिकली प्ले इट फॉर यू। अपने हेडफोन लगा लें, बिकॉज हेडफोन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बेशक वीडियो पॉज कर दें, हेडफोन लगा लें। इससे आगे मैंने आपको एक वीडियो भी दिखानी है जिसके लिए मुझे आपके हेडफोन्स की बहुत ज़रूरत है। सो या हेडफोन ले आए, पॉज कर लें। ऑल राइट, रेडी जी? सो ऑल राइट, सो दैट्स योर साइबेरियन टाइगर फॉर यू। आप कहेंगे कि जी मैं तो खराटे भी ऐसे ही लेता हूँ तो मेरा मसला नहीं है। आपको अगर ये नहीं लग रही आवाज़ बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग बिकॉज यूर यूज टू इट, तो देन दैट्स योर प्रॉब्लम। बट एनी हाउ, इस साउंड के अंदर अगर आप इसको एनालाइज करें तो यू क्लियरली सी के लो नोट्स की तरफ ये शिफ्टेड है। इसका स्पेक्ट्रम पूरा लो नोट्स की तरफ शिफ्टेड है। इंटरनेट पे जाके डाउनलोड कर लें कहीं से, इस वीडियो की ऑडियो निकाल लें कहीं से पकड़ लें, और उसके बाद इसका जाकर प्रैट के अंदर एनालिसिस करें तो आपको नज़र आएगा कि इसमें लो फ्रीक्वेंसीज मौजूद भी हैं और वो काफ़ी हाई एनर्जी के साथ मौजूद है। एज अ करेंगे कैसे? आप प्रैट के अंदर स्पेक्ट्रोग्राम खोल करना और किसी जगह प्लेस कीजिएगा जहाँ पे आपको ज़्यादा डीप बैंड्स नज़र आ रहे हैं नीचे तक, और उसके बाद उसका स्पेक्ट्रल स्लाइस निकाल लें। गो टू स्पेक्ट्रम, व्यू स्पेक्ट्रल स्लाइस, तो यू गोना सी कि वो क्या चीज़ है। अच्छा जनाब, ये बात आपकी समझ में आ गई कि अब ये चीज़ें, अच्छा मैंने नीचे आपको ना ढेर सारे लिंक्स दिए हैं क्योंकि जाहिर है ये सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस करने का तो हमारे पास वक्त नहीं है, बट दिस फर्स्ट वीडियो इज़ अ टेड टॉक बाय जूलियन ट्रेजर दैट्स अबाउट साउंडस्केपिंग। सो साउंडस्केपिंग का मतलब ये होता है कि जिस तरह हमारा लैंडस्केपिंग होती है, हम किसी ऑफिस स्पेस को या रेजिडेंशियल स्पेस को या और चीज़ों को प्लान करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स विजुअल अपील, उसी तरह से साउंड की भी स्केपिंग होनी चाहिए कि किस किस्म की साउंड्स आपके एनवायरनमेंट में होंगी। कुछ साउंड्स अपलिफ्टिंग होती हैं, कुछ साउंड्स डिप्रेसिंग होती हैं, कुछ साउंड्स गमगीन करती हैं। वी हैव अ वेरी क्लियर इमोशनल रिस्पॉन्स टू साउंड्स। सो साउंडस्केपिंग एक ज़रूरी चीज़ है। तो आई वुड वांट कि आप ये जाकर अपने तौर पर देख लीजिएगा इसकी टेड टॉक। इन्हीं की एक रीसेंट टेड टॉक से जिसमें इन्होंने इन चीज़ों को रिव्यू किया है, मैंने अगली स्लाइड के अंदर उस वीडियो को डाला हुआ है, वो तो आप खैर इंशाल्लाह देख ही लेंगे। उसके बाद ये आगे कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि एक है कि इंफ्रासाउंड्स या इंफ्रासोनिक्स हम पे किस तरह असरअंदाज होती हैं। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। देन देयर इज़ अ विकिपीडिया आर्टिकल ऑन इंफ्रासोनिक्स, ये ज़रूर देखने वाली चीज़ है, इसको अगर वक्त मिले तो पढ़ें। सिमिलरली ये जो है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स के अंदर मेक यू फील सिक, दिस इज एन इंटरेस्टिंग वीडियो। और ये मैन ईटिंग टाइगर का खैर इट्स जस्ट अ वीडियो जिसमें एक टाइगर जो है वो ग्राउल कर रहा है। यू कैन बेसिकली व्यू इट, लेकिन असल मज़ा तब आता है इन चीज़ों का, मैं मज़ा कह रहा हूँ लेकिन समझ तब आती है जब आप लेट्स से वाकई खड़े हुए हैं, लेट्स से चिड़ियाघर में, होपफुली जंगल में नहीं लेकिन चिड़ियाघर में, और सामने टाइगर जो है वो ग्राउल कर रहा है या वो रोर कर रहा है, और आपको उसकी आवाज़ पे आप एक्सपोज, आपकी पूरी बॉडी हो रही है, ना कि सिर्फ आपके कान हो रहे हैं। या यू हैव लाइक रियली बिग स्पीकर्स और वो इतनी अच्छी तरह रिकॉर्ड भी हुई हो, रिप्रोड्यूस भी हो रही हो, तो थोड़े से मसले आ जाते हैं। आई नो मिथ बस्टर्स एट वन पॉइंट वर्क विद अ लॉट ऑफ दीज, जो है वो इनको मिथ्स के कैटेगरी में लेकर के जी देयर इज़ अ ब्राउन नोट एंड सो ऑन, अपने तौर पर पढ़ लीजिएगा। सो देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग there is interesting stuff about these things. इसको वेपनाइज करने की बात भी की जाती है कि इंफ्रासाउंड्स कुड बी वेपनाइज्ड, और उसको यूज़ किया जा सकता है फॉर डैमेजिंग अदर ह्यूमंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिमिलरली एनिमल किंगडम में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। सो एलिफेंट्स इसको यूज़ करते हैं, उसके अलावा टाइगर्स का आपने देख लिया, तो इंफ्रासाउंड्स वहाँ यूज़ होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो एनिमल्स का रिस्पॉन्स है हमारी जो अकूस्टिक रिस्पॉन्स है, यानी जो वो सुन सकते हैं, वो हमसे बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। सो फॉर एग्जांपल डॉग्स का जो रिस्पॉन्स है, जो उनका जो सुनने का है, वो 50 हर्ट्ज से लेकर 45,000 हर्ट्ज तक है। सो दैट्स वाई यू हैव योर अल्ट्रासोनिक डॉग विसल्स, कि वो विसल जैसे आप बजाते हैं आपको तो मुश्किल से हल्की सी आवाज़ आती है और वो बेचारा जो है वो परेशान होकर रह जाता है। सिमिलरली कैट्स का रिस्पॉन्स 85,000 हर्ट्ज तक जाता है। सो दे आर हियरिंग वॉट यू आर नॉट हियरिंग।
एंड हो सकता है ऐसी आवाज़ें उनको तंग भी कर रही हो जो आपको नहीं करती. Bats can detect frequencies up to 120,000 hertz, so 120 kilohertz. क्यों? क्योंकि बैट्स ने अपना देखने का सारा काम इसी से करना है. सो दे आर बेसिकली डूइंग दिस echolocation, जहाँ पे वो एक्टिवली साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं. वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर सर्फेसेस से आती है और उनके कानों में जाती है, एंड दे बेसिकली मेक दिस होल picture around themselves just using this echolocation, bat location या echolocation. तो ये जो चीज़ है, क्योंकि उनकी आइज़ नहीं काम अच्छी कर रही होती जिन सिचुएशंस में, वहाँ पर उनकी वो आवाज़ से लोकेट करती हैं. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दिस एंड अ लॉट ऑफ डिटेल ऑन दिस. ये चीज़ हम खुद भी बनाते हैं यूजिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर्स एंड ऑल ऑफ दैट. अच्छा जी, डॉल्फिन्स जो हैं वो 200 किलो हर्ट्ज तक सुन सकती हैं. बाय द वे, अगर आप ये और भी देखना चाहते हो तो विकीपीडिया के पेज पर पूरी डिटेल है कि कौन से एनिमल का कहाँ से कहाँ तक रफली रेंज है सुनने की. एलिफेंट्स की, एज विदाउट एनी सरप्राइज, जैसे कि मैंने कहा था, वो इंफ्रासोनिक्स भी यूज़ करते हैं अपने लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स को करने के लिए. उनकी वो जो ट्रंक है ना, वो एज ए रेजोनेटर यूज़ करती है, यूज़ होती है. तो वो 5 हर्ट्ज से लेकर 10,000 यानी 10 किलो हर्ट्ज तक उनकी सुनने की रेंज है. तो ये डिफरेंट एनिमल्स की जो ऑडियो परसेप्शन की रेंज है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की रेंज है जिस पे वो सुन सकते हैं, ये हमसे बहुत डिफरेंट है. नाउ आई वुड लाइक यू टू वॉच दिस वीडियो. इस वीडियो के लिए हेडफोन ज़रूर लगा लें. द गाय विल प्ले आई थिंक अराउंड 4 साउंड्स फॉर यू, बट आई एटलीस्ट फेल्ट वेरी क्लियरली जिस इमोशन को वो ट्रिगर करना चाह रहे थे, वो इमोशन बहुत क्लियरली ही वॉज एबल टू ट्रिगर. सो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट. Let's talk about how sound affects our happiness at work. Because design largely takes place for the eyes in our society. When we think about design, we don't think about the ears. Why is this? I would suggest partly it's because we surround ourselves with noise. We're so used to standing on street corners, shouting over noise like this, and pretending that it doesn't exist, that our habit is to suppress sound. We suppress our consciousness of sound all the time. And that includes designers. Most of us have a relationship with sound that looks a little bit like this. And yet sound affects us in 4 very powerful ways. Now, I talked about these in my very first TED Talk. I just need to refresh those with you as a foundation for this talk about sound at work. So here are the 4 ways sound affects us. The first one, sorry about that. That's a little shot of cortisol, your fight-flight hormone. Sound is affecting us physiologically all the time. Breathing, heart rate, hormone secretions, even your brainwaves are changed by sound. I can calm you down again with a little surf. 12 cycles per minute, very similar to the breathing of a sleeping human being, and a sound we associate with being relaxed. If you ever have problems sleeping, this is a good sound to use. Second way sound affects us is psychologically. Music changes our mood, we know that. This piece of music is not going to make you feel happy. It wasn't designed to do that. But music is not the only sound that changes our feelings. At the sound agency, my company, we use birdsong a great deal, even in offices, because we've all learned over hundreds of thousands of years that when the birds are singing, we're safe. Makes us feel secure when we hear birds. Also, nature's alarm clock. Birdsong, time to be awake, so it's mentally alert, physically relaxed. Just not a good moment if the birds suddenly stop singing, is it? Not good. The third way sound affects us is cognitively. You can't understand 2 people talking at the same time, or in this case, one person talking twice. Even a woman cannot understand 2 people talking at the same time. Sorry, but it's true. We have bandwidth for roughly 1.6 human conversations. So if you're in an office that sounds like this, particularly if you can hear one conversation, it's very hard to think, and the effect on your productivity is devastating. Now, we'll come on to this in more detail in a moment. अच्छा जी, परसेप्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ही की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. हमने जैसे इससे पहले बात की थी कि फ्रीक्वेंसी की परसेप्शन को हम यूजुअली पिच ऑफ द साउंड कहते हैं. ठीक है, ये बात हमने अकूस्टिक आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के आखिर में की थी. सो ह्यूमंस कैन बी ट्रेन टू डिटेक्ट अ डिफरेंस ऑफ एज लिटिल एज 2 हर्ट्ज. और लेकिन मज़े की बात ये कि ये जो डिफरेंस है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं है अक्रॉस ऑल फ्रीक्वेंसीज. सो फॉर लोअर फ्रीक्वेंसीज लाइक 100 हर्ट्ज या लेट्स से 200 हर्ट्ज और 202 हर्ट्ज डिटेक्ट करना डिफरेंस इतना मुश्किल नहीं है. Whereas a difference of say let's say 10,000 hertz and 10,002 hertz डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है. सो हमारा जो ये रिस्पॉन्स है ना, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस JND, ये चेंज होता जाता है ओवर
ओवर द फ्रीक्वेंसीज है, और इसकी हम अभी आगे जाकर बात करेंगे जब हम मेल स्केल को डिस्कस करेंगे, ये भी आज ही हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है। मैं खैर एनी हाउ, सो हम फ्रीक्वेंसीज के बीच में डिफरेंस करने के आदी हैं, लेकिन हमारे जो परसेप्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी उसमें और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं। और अब हम थोड़ी सी म्यूजिक थ्योरी की बात करते हैं बहुत ब्रीफली। So certain sound waves when played and heard simultaneously will produce a particularly pleasant sensation when heard, and they're called consonant sounds. So consonant sounds वो sounds होती हैं, ये by the way ये वो आपका वो consonant नहीं है. So these consonant sounds are the sounds जो कि इकट्ठी play हों तो अच्छा लगता है, यानी जिसकी basis पे आपके musical notes बनते हैं कि ये sounds इकट्ठी play हों तो अच्छी लगती हैं। और कुछ और sounds ऐसी हैं जिनको हम dissonant कहते हैं, जब वो साथ play होती हैं तो बुरा लगता है, कानों को बुरा feel होता है। अभी आप जो है पिछली एग्जाम्पल में वीडियो की थोड़ा सा अच्छे और बुरी साउंड की एग्जाम्पल देख भी आए। So these sound waves form the basis of the intervals in music. So any two sounds whose frequencies make a 2:1 ratio are said to be separated by an octave. ठीक है, दो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2:1 का रेशो बना रही है या 1:2 बना रही है, उनको हम कहते हैं कि इनके बीच में एक ऑक्टेव का फासला है। फॉर एग्जांपल 110 हर्ट्ज एंड 220 हर्ट्ज एंड 440 हर्ट्ज, इन सब के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक ऑक्टेव का है, और इसको हम वेस्टर्न म्यूजिकल सिस्टम के अंदर हम इसको ए कहते हैं, नोट ए इसको कहा जाता है। अच्छा, ऑक्टेव्स और नोट्स जो जब आप उनको सुनते हैं तो आपको एक जैसी फीलिंग आती है। सो 110 हर्ट्ज और 220 हर्ट्ज और 440 हर्ट्ज और 880 हर्ट्ज, इनकी फीलिंग मिलती जुलती है। सो द थिंग इज कि ऐसा ज़रूर फील होगा कि हाई हो रहा है, लेकिन जब ये प्ले होंगे तो ये ज़रूर फील होगा कि ओके दे कैन बी क्लासिफाइड टुगेदर, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। तो ये है बेसिस हमारे इनको ऑक्टेव्स कहने के, कि ये 1:2 के ऊपर जितनी भी, यानी डबलिंग के ऊपर जितनी भी आपको फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं, दे साउंड सिमिलर। ठीक है, अच्छा, इसको बाय द वे हम ऑक्ट क्यों कहते हैं, यहाँ 8 का क्या ताल्लुक है, तो बेसिकली हम इसको डिवाइड करते हैं इस इंटरवल को, और दिस इज़ नॉट वेरी प्रिसाइज, तो इसमें आपको मसले भी नज़र आएंगे। ऑक्टेव ट्रेडिशनली यूज़ होता था तो अभी तक यूज़ होता चला जा रहा है, बट बेसिकली दिस स्केल इज़ डिवाइडेड इनटू these further diatonic notes. So you have your A, B, C, D, E, F, G, and then A repeats, and then B, C, D, E, F, G, and then A repeats. So 8वां नोट होता है, ये दोबारा जब ये रिपीट हो रहे होते हैं तो in that repetition it's the 8th one. ठीक है, so 110 और 220 के बीच में you will have basically these jumps, कि इसके बाद आपके पास A के बाद B भी है और B के बाद C भी है, और वो भी frequency ratios हैं, अपने तौर पे आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ लीजिएगा। And then there are semitones which make up for essentially 12 notes between these any two particular octaves. तो ये खैर वेस्टर्न म्यूजिकल सिस्टम है। आप अरेबिक म्यूजिकल सिस्टम पे जाएंगे तो वो कुछ और फॉलो कर रहा है, आपका सब कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ और फॉलो हो रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें भी एक थोड़ी सी मिस्ट्री है ह्यूमन कॉग्निशन की, कि हमें ये पिचेस जो हैं वो पावर ऑफ 2 के अंदर ये रिलेटेड क्यों लगती हैं, एक जैसी क्यों लगती हैं। और ये खाली ह्यूमंस में नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट जब आप एनिमल्स के ऊपर भी करते हैं तो वो भी ऑक्टेव्स को डिटेक्ट करने की सिम्टम्स शो करते हैं। So this equivalency of octaves is something that we have in our heads. This is wired somewhere. So this is interesting discussion in the field of music theory. मैंने नीचे ये कुछ एक लिंक दे दिया वीडियो का, जिसके अंदर अगर आप खुद इसको पिचेस को पढ़ना चाहें, म्यूजिक थ्योरी को देखना चाहें, तो you can refer to that and you can look at that. By the way, जब मैं म्यूजिक थ्योरी कह रहा हूँ तो that's not just related to music that is played on instruments, that's also related to the sounds and tones that are produced by humans through their own articulatory system, और इसकी हम गुफ्तगू इससे पहले करके आए हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज़ की तरफ, जिसकी बेस पे हमने अगली कुछ बातों को बेस करना है। जब भी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि किसी डेटा सेट में स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर, या स्मॉलेस्ट इंपॉर्टेंट नंबर और लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें फिर बड़ा मसला हो जाता है उन चीज़ों को प्लॉट करने का, कि अब हम उनको प्लॉट कैसे करें, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि एक प्लॉट के ऊपर वो चीज़ें फिट नहीं आ रही होती। तो लिहाजा किसी तरह से एक विजुअल प्लॉट पे फिट करना और विजुअलाइज करना, उस स्केल को इमेजिन करना, और मैं आपको अभी इसकी एग्जांपल देता हूँ, वो करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पॉइंट पे हम करते ये हैं, फॉर एग्जांपल ये एक आइडिया, सो ये एक एग्जांपल देख लीजिए कि 1 मिलियन सेकंड्स जो हैं वो 12 दिन होते हैं, लेकिन 1 ट्रिलियन सेकंड्स जो हैं वो 30,000 ईयर्स होते हैं। तो 12 दिन तो एक वेकेशन की लंबाई होती है, और 30,000 ईयर्स हमारी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का मे बी जो टोटल लेंथ है वो इतनी है। तो लिहाजा यहाँ पर इस
छोटी और बड़ी चीज़ के बीच में स्केल करना कि मैं अगर 1 सेकंड से लेकर और 1 ट्रिलियन सेकंड तक का ग्राफ बनाना चाहूँ तो प्रॉब्ली प्लॉटिंग इट ऑन एन एक्सिस विच इज़ 1 ट्रिलियन लॉन्ग वुड नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, और ना ही वो इतना समझ में आएगा। कभी ऐसा भी होता है कि इस पूरे ग्राफ के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और फिर ढेर सारी चीज़ें यहाँ हैं, या एक एंड पे ढेर सारी चीज़ें हैं और फिर बहुत कम इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ों में भी हम यही सोल्यूशन यूज़ करते हैं जो हम यहाँ देखने लगे। So the trick here to overcoming this huge number blindness, Khalid calls it number blindness, Khalid Azad मैंने ऊपर लिंक दिया हुआ है, is to write numbers in terms of inputs. For example, हम इनको powers of base 10 में represent करना शुरू कर दें, तो हमारा स्केल जो है वो 0 से लेकर 10th पावर का जो है वो स्केल छोटा हो जाएगा। So अब हम लेट्स से एक छोटे स्केल की बात कर रहे होंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे वो मैप कर दिया, जो अदरवाइज आपने 10⁻10 तक जाकर मैप करना था। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नीचे इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से पावर ऑफ 0 जो है वो एक सिंगल आइटम है, ठीक है, एंड योर पावर ऑफ 1 is 10, and your power of 3 is 1000, and your power of 6 is a million, your power of 9 is a billion, ठीक है, your power of 12 is a trillion, your power of 23 10 to the power 23 gives you the number of molecules in a dozen grams of carbon, and 10 to the power 80 gives you the number of molecules in the universe. So going from single item to number of molecules in the universe, अगर हम ये scale follow करें तो ये plotable नहीं होगा। 0 10 to the power 0 से लेकर 10 to the power 80 तक का scale ये plot करने के काबिल नहीं होगा, ना visualize हो सकेगा। लेकिन अगर हम इसको log में ले जाएं और इसको 0 से लेकर 80 के ऊपर प्लॉट कर दें तो ये बहुत मैनेजेबल है। सो हम लॉग्स आर अ वेरी पावरफुल टूल, इनको हम जगह जगह मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ करेंगे, कहीं अंडरफ्लो को रोकने के लिए यूज़ कर रहे होंगे, कहीं मल्टीप्लिकेशंस को एडिशंस में और डिविजन्स को सब्ट्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर रहे होंगे, बहुत हमारे काम आता है ये। लॉग इज़ एन अमेजिंग टूल दैट वी हैव, लेकिन यहाँ लॉग स्केल सिर्फ हमारे ओवरऑल स्केल को कंप्रेस करने के लिए यूज़ हो रहा है, मैनेजेबल और विजुअलाइजेबल करने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, सो ये 0 से 80 का जो है वो एक सिंगल आइटम से लेकर नंबर ऑफ थिंग्स इन द यूनिवर्स का जो पूरा स्केल है वो 0 से 80 में फिट हो गया। इस तरह की एग्जांपल्स मैं आपको एक दो भी और दिखाता हूँ। So the logarithmic scale is a way of displaying numerical data over a very wide range of values in a compact way using a non-linear, that is your logarithmic scale. ठीक है, so exponential scales को basically logarithmic scale जो है वो linearize कर देता है, नीचे ले आता है। ठीक है, ये यहाँ पर आप जो एक ग्राफ देख रहे हैं, this is basically the distance from your sun to Alpha Centauri. सो अल्फा सेंटोरी क्या है, अब थोड़ी सी मैंने ये साइड पर लिख दिया था फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड। सो इट्स द क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम एंड द क्लोजेस्ट प्लैनेटरी सिस्टम टू द अर्थ्स सोलर सिस्टम। इट इज लोकेटेड एट 4.73 लाइट ईयर्स, सो 1.34 पार्सेक्स के फासले पर हमसे ये है। सो इट्स अ ट्रिपल स्टार सिस्टम, इसमें 3 स्टार्स हैं। इट हैज़ द अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी एंड अल्फा सेंटोरी सी, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज प्रॉक्सिमा सेंटोरी। आपने कहीं ना कहीं इसकी कोई आर्टिस्टिक ड्राइंग्स या कभी नाम इसका सुना होगा। फॉर दोज ऑफ यू हु आर एस्ट्रोनॉमी एंथुसियास्ट उन्हें इससे ज़्यादा पता होगा। लेकिन जब नेकेड आई से हम देखते हैं तो हमें सिर्फ अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी नजर आते हैं। अल्फा सेंटोरी सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिम है, वो नज़र नहीं आता। और वैसे भी ये सदर्न स्काई की कॉन्स्टलेशंस के अंदर अपीयर होते हैं, तो वी आर नॉट एबल टू सी देम डायरेक्टली फ्रॉम हियर, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमें नज़र आ रहे होते हैं। ऑलराइट, हम कर ये रहे हैं कि सन से लेकर अल्फा सेंटोरी तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं यूजिंग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारा एक बड़ा आसान सा यूनिट है, वो है ये कि हमने अर्थ से लेकर सन का एवरेज डिस्टेंस निकाल लिया। तो ऑब्वियसली इट्स एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो एक फिक्स डिस्टेंस तो है नहीं, एक एवरेज डिस्टेंस निकाल लिया जो कि तकरीबन कोई 93 मिलियन माइल्स या 150 मिलियन किलोमीटर्स बनता है। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अब हम देखना चाह रहे हैं कि सन से अल्फा सेंटोरी तक कितने कितने फासले पर इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं। तो यू कैन सी हियर कि सन से एट एग्जैक्टली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यू हैव अर्थ विदिन। अब अगर हम यहाँ पर चलते हैं इसमें, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि 10 एस्ट्रोनॉमिकल यानी अगली इंटरेस्टिंग चीज़ विद इन द नेक्स्ट 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स अपीयर होती है। तो यानी अगर इसमें ग्राफ को खोल कर बनाता, तो अगर 1 यहाँ है तो 2 यहाँ होता, 3 यहाँ होता, 4 यहाँ होता, 5 यहाँ होता, 6 यहाँ होता, 7 यहाँ होता, 8 यहाँ होता, 9 यहाँ होता और 10 यहाँ होता, अगर नॉर्मली बनाते। लेकिन हमने जब लॉग में रिप्रेजेंट किया, पावर्स में रिप्रेजेंट किया, तो ये 1 के फासले के ऊपर आ गया, तो 10⁻1 तक आ गया, और जिसके अंदर आपको मार्स, जुपिटर और सैटर्न मिल रहे हैं। The next jump is 10⁻²। अब ज़रा सोचें, मैं यहाँ पर अगर ये 100 डिविजन्स और बनाता इतनी लंबी, तो मेरी स्क्रीन से तो ये चीज़ बाहर निकल जाती।
और ये हम रिप्रेजेंट ना कर सकते, लेकिन लॉग स्केल है तो लिहाजा अगले 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के अंदर इन विद इन 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स फ्रॉम द सन you also have your Neptune and Pluto, and you also have these interesting outer parts of your हीलियोपॉज जो अब यहाँ पे आना शुरू हो गए, ठीक है। सो ये हाइड्रोजन वॉल, ये भी रिसेंटली आपने जिस वक्त वॉयेजर अभी निकले हैं बाहर, तो आपने उस वक्त वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखें। फिर आप करते क्या हैं अपने फारिग टाइम के अंदर, फेसबुक पे बैठे रहते हैं। तो खैर एनीहाउ, जो कुछ भी आपके इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो किया करें, लेकिन ऐसे काम भी किया करें। सो पढ़िए कि जिस वक्त अभी रिसेंटली हमारे वॉयेजर्स जो है वो वॉल ऑफ फायर से बाहर निकले हैं, तो वहाँ पर क्या था, सो द वॉल ऑफ प्लाज्मा, जिससे वो बाहर निकल गए, एंड वी आर डिस्कवरिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स एज दे कंटिन्यू ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स बैक टू अस। the most I think it's called the most scary photograph ever, जो कि वॉयेजर ने खींची है सन की वापस मुड़ के, and it's like the sun is a small speck in that photograph. I think वो भी ज़रूर देखिएगा, it's fun. But anyhow, within 100 astronomical units ये सारी चीज़ें हो गई। within 1000 astronomical units अब ये बाकी सब कुछ जो आपका है वो आ चुका है। then within 10⁴ astronomical units आपका edge of the local cloud आ चुका है probably, and then within 10⁵ astronomical units you have the edge of the G cloud, and then finally located at 10⁶ यानी 1 million astronomical units के ऊपर you have your Alpha Centauri. So you compress this whole, अब जरा सोचें मैं अगर 1 million astronomical units, जबकि ये 1 astronomical unit है, यहाँ ड्रॉ करता तो ये ग्राफ कैसा होता। और इस पूरे स्पार्स ग्राफ के अंदर शुरू में कोई थोड़ी सी चीज़ें इंटरेस्टिंग होती और आखिर में बिल्कुल एक नुक्ता लगा हुआ होता है अल्फा सेंटोरी का। सो वी बेसिकली just took the whole thing and compressed it into a very small manageable graph, जो numbers भी अब हमें समझ में आ रहे हैं और उसकी सेंस भी बन रही है। तो इसको अगर हम अब लेबल करें तो this is just going to go from 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7, so that's how, so this is going to be 10⁻0, this will be 0, so you're just going to get 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका पूरा का पूरा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई चीज़। सो ये इस तरह के कामों में हमारा लॉग स्केल यूज़ होता है। Here is another example, Richter scale. So Richter scale, ये जो more appropriately it should be called the moment magnitude scale, although कि जो पुराना है उसके ऊपर ये कैलिब्रेट हुआ हुआ है Richter scale पे। मैंने ये नीचे आपको एक लिंक भी दे दिया है खान अकेडमी की, that's a very nice video अगर आप में से कोई तफसील से पढ़ना चाहे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए किसी जगह पर एक ज़िलज़िला आता है 5 मैग्नीट्यूड का और किसी और जगह एक ज़िलज़िला आता है 6 मैग्नीट्यूड का, दोनों के बीच में शेकिंग में कितना फ़र्क होगा? आप पॉज नहीं करते, मैंने पॉज कर दिया। कितना फ़र्क होगा, कितना ज़्यादा झटके आ रहे होंगे कंपैरेटिवली मैग्नीट्यूड वाइज 6 वाली जगह कंपेयर टू 5 वाली जगह? लीनियरली लाइक डबल, मे बी इट्स एक्चुअली 10 टाइम्स। सो द Richter scale is a logarithmic scale, and it basically what's happening here in the Richter scale, and that was the one of the problems that was faced by when it was created, the Richter scale। जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम मैं आपके सामने वाजे कर देता हूँ। प्रॉब्लम ये था कि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं। एक है आपके पास लेट्स से मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, जो कि लेट्स से आपने एक किसी स्केल के ऊपर मेजर किया है कि वो कितना ज़्यादा जो है वो जॉल्टिंग कितनी ज़्यादा है, और दूसरा है आप डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर। सो जिस जगह वो पहली दफ़ा आकर ज़मीन पर वो लगा है, सो बेसिकली यू हैव योर कोर जहाँ पे आपका ज़िलज़िला इनिशिएट हुआ है, और वहाँ के बिल्कुल ऊपर जो ज़मीन का क्लोजेस्ट पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, वो आपका एपिसेंटर है। उस एपिसेंटर से आप कितना दूर आ चुके हैं, सो बेसिकली ये डिस्टेंस आप यहाँ पर देख रहे हैं। सो अब अगर फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में एक चीज़ लेट्स से यहाँ लोकेटेड है, तो ये कोई इतना बुरा अर्थक्वेक नहीं है क्योंकि ये अपने सोर्स के बहुत करीब है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। वेयरएज इफ समथिंग इज लोकेटेड हियर, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आने के बाद भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, तो दिस माइट बी अ स्ट्रॉन्गर अर्थक्वेक। वेयरएज दिस अर्थक्वेक, इसको आप कैसा रखेंगे? ये अपने सोर्स के करीब है और इसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई है, सो ये इसको हम दरमियाना सा कहेंगे। Whereas what about this? This is far away from the source and its magnitude is very high. So this is a really bad earthquake compared to all of these three. अब मसला ये है कि जब हम ये ग्राफ बनाना शुरू करते हैं तो it goes out of the screen very quickly. इस साइड पे बहुत तेज़ी से आपके पास आगे 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 आपके earthquakes चलते जाते हैं। So therefore what was decided was जब इस पे काम हो रहा था कैलटेक के अंदर, I think this work was done, तो इसमें ये किया गया कि they came up with the same solution, use a logarithmic scale. So now you have the scale here, so you have these
रेक्टर स्केल पे ये 1 मैग्नीट्यूड, 3 मैग्नीट्यूड, 5, 6, 7, 8 एंड 9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स। सो हर एक के बीच में जो डिफरेंस है शेकिंग का वो 10 टाइम्स है, हर एक के बीच में अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो 33 टाइम्स मोर है पिछले वाले लेवल से, ठीक है। सो वेयर एज के ये तो फील भी नहीं हो रहे हैं, these are moderate, these are strong, these are major, and these are great earthquakes which essentially just erase stuff from the surface. Let me just remove some of these things for to make space. All right, so ये आप देख रहे हैं basically another way of looking at this Richter scale, and let me just point out a few things for you. So यहाँ पर आप देख रहे हैं, so these are on the left side you have the magnitudes 2, 3, 4, 5 up to 10, and then on the other side you see the amount of energy released, and you can see here the examples of such earthquakes, and here you can see the comparison in terms of कितनी energy और किस चीज़ में release होती है. So for example your magnitude 6 earthquake roughly releases the amount of energy at the source close to जो आपके हिरोशिमा के जो बॉम्ब की जो एक्सप्लोजन, एटॉमिक बॉम्ब की जो एक्सप्लोजन थी उतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है. Your magnitude 7 earthquake जिसकी एग्जांपल्स कुछ लिखी हुई हैं, ये तकरीबन ये इस वोल्केनो की इरप्शन जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. Your magnitude 8 earthquake, basically this is closer to 8 than 7. Your magnitude 8 earthquake जो जैसे सैन फ्रांसिस्को का मशहूर earthquake था, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के बराबर जो यूएसएसआर का है, आई थिंक इट वाज दी सार बॉम्बा, सो वो वाला टेस्ट है गालिबन ये उसकी जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. एंड देन ये जो आपका अर्थक्वेक है 9 का, जिसे हम ये कह रहे हैं कि ये आ भी चुके हैं इससे पहले और इससे ऊपर भी शायद ये 1960 में ये अर्थक्वेक आया था विच बेसिकली डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. ये क्रैकेटोआ के वॉल्केनिक इरप्शन जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. अब ये क्या है इसकी बात हमने आगे करनी है बिकॉज इसका साउंड से भी ताल्लुक है. तो ये क्रैकेटोआ का वॉल्केनिक इरप्शन की हम बात करेंगे इंडोनेशिया की, बट दिस इज योर रफ कंपैरिजन. सो अगर ये वाला स्केल आपका लॉगरिदमिक ना होता तो हम कभी भी इसको विजुलाइज ना कर पाते. सो ये लॉग्स का की स्ट्रेंथ. जी जनाब, सो ये हमारे लॉगरिदम्स की स्ट्रेंथ्स हैं जो हमने अब देख ली. अब यहाँ से आगे अब हम मौजू पर पहुँच चुके हैं. बेसिकली ये सारा लॉग की गुफ्तगू करने का जो मकसद था वो ये था कि आपके जहन में ये तरीका समझ में आ जाए कि किस तरह से लॉग स्केल यूज़ होता है और किन सिचुएशंस में यूज़ होता है. सो अब हम वापस आते हैं परसेप्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी पे. हमारा जो परसेप्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो लीनियर नहीं. सो हम दो साउंड्स के बीच में, और ये याद रहे कि ये पूरी डिस्कशन हो रही है डिफरेंसेस की, कि लेट्स से दो साउंड्स के बीच में डिफरेंस करके हम कहेंगे कि जी ये डिफरेंस इक्वल है इन दो साउंड्स के डिफरेंस के बीच में. सो लेट्स से 2 से 4, लेट्स से आई डोंट नो लाइक 100 से 105 हर्ट्ज का डिफरेंस कितने डिफरेंस के इक्वल है. लेट्स से अगर मैं 10,000 टू 10,000 से कितने हर्ट्ज तक जाऊं तो मुझे उतना ही डिफरेंस फील होगा, राइट. सो वी वांट टू जस्ट परसेप्चुअली मेजर कि कौन सी दो साउंड्स हमें एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे फील होती हैं. उसके लिए ये एक मेजर बनाया गया जिसको मेल स्केल कहते हैं. सो इट्स अ नॉन लीनियर स्केल. इट इंडिकेट्स द हियरिंग रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमंस टू वेरियस फ्रीक्वेंसीज. मेल स्टैंड्स फॉर मेलोडी. इनिशियली ये म्यूजिक के लिए बना था. इट्स अ परसेप्चुअल स्केल ऑफ पिचेस जज्ड बाय लिसनर्स टू बी इक्वल इन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. सो दो आवाजें जो यूजर्स, जो सुनने वालों को, रिस्पोंडेंट्स को इक्वल डिस्टेंस पे लग रही हैं एक दूसरे के मुकाबले में, ठीक है. ये इस तरह से ये बना था. सो आप इसके एक्सपेरिमेंट्स पढ़ सकते हैं. उसमें कुछ थोड़ी बहुत बायस की कंट्रोवर्सी है, बट दिस इज़ अ वेरी वाइडली यूज स्केल. एंड ये फिलहाल हमारे मशीन लर्निंग के जो कोर स्पीच के मॉडल्स हैं, फीचर्स के, नॉट मॉडल्स, द फीचर सेट्स which are the MFCCs, उसमें M stands for mel frequency. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसकी समझ हो. अच्छा जनाब, सो मेल में हम करते ये हैं, लेट मी एक्चुअली शो यू द ग्राफ. हम करते ये हैं कि हमने एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया. हमने ये ऑब्जर्व किया कि तकरीबन को 1000 हर्ट्ज के करीब तक जो रिस्पॉन्स है वो नियरली लीनियर है. सो 500 तक रफली लीनियर है और 1000 तक भी तकरीबन लीनियर के करीब है. सो 1000 हर्ट्ज को कह दिया कि ये रेफरेंस है. सो 1000 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 मेल्स. सो इसको हम पढ़ेंगे स्केल को हर्ट्ज में, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज हैं. इसको हम पढ़ेंगे मेल्स में. इसको हम कभी भी हर्ट्ज में नहीं पढ़ते, ठीक है. इसको हम मेल्स में पढ़ेंगे. सो दीज आर योर मेल्स. सो कि हम यहाँ पर अब देख ही रहे हैं कि कौन सी हर्ट्ज से कितने मेल्स के ऊपर मैपिंग हो रही है. सो व्हाट दिस इज सेइंग इज कि 1000 के ऊपर आपने रेफरेंस कर दिया. सो यू कैन क्लियरली सी योर 1000 हर्ट्ज इज 1000 मेल्स. और इसके लिए आपने ये भी तयन कर लिया है कि आवाज़ की इंटेंसिटी कितनी है, जिस पे ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, जिस पे ये वैलिड होंगे ये रिजल्ट्स, ठीक है. एंड नाउ मैं लेट मी शो यू द फॉर्मूला, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज द आउटकम. फॉर्मूला भी देख लेते हैं. एक पिच ऑफ 1000 हर्ट्ज इज 1000
mels, लेकिन a sound which is half as high would have a pitch of 500 mels. So अगर मैंने ये आवाज़ किसी को सुनाई है और अब मैं इससे हाफ फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ परसेप्चुअली, तो इसेंशली मैं उसको सुनाऊंगा बेसिकली इस स्केल पे नीचे आऊंगा एंड दैट वुड बी 500 मेल्स. तो मैं इसको 500 मेल्स की सुनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसको 1000 हर्ट्ज से 500 हर्ट्ज पे आता हूँ तो वो जो डिफरेंस फील कर रहा होगा वो इतना होगा, यानी वो 400 मेल्स का डिफरेंस फील कर रहा होगा, ना कि 500 मेल्स का. ये बात कुछ समझ में आ रही है? सो एक साउंड मैंने चला दी, अब मैं ये सुनाना चाहता हूँ यूज़र को उससे डबल फ्रीक्वेंसी की आवाज़ या उससे हाफ फ्रीक्वेंसी की आवाज़. ये सुनाने के लिए मैं उसको फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज में डबल नहीं सुनाऊंगा, हर्ट्ज में हाफ नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मैं उसको मेल्स में डबल या मेल्स में हाफ सुनाऊंगा. सो अ साउंड that sounds half as high would have a pitch of 500 mels, whereas a sound that sounds twice as high would have a pitch of 2000 mels. अब ये हर्ट्ज में कहाँ मैप हो रही है ये देख लें. सो ट्वाइस एज हाई की यानी जो 1000 से है, सो बेसिकली दैट इज 2000 मेल्स, एंड 2000 मेल्स इज रफली this 3500 हर्ट्ज, ना के 2000 हर्ट्ज. सो मैंने अगर 1000 हर्ट्ज सुनाकर किसी को उससे डबल आवाज़ सुनानी है फ्रीक्वेंसी में, परसीव करवाना है कि उसे फील हो डबलिंग हुई है फ्रीक्वेंसी की, तो मैं उसको 2000 मेल यानी 3500 हर्ट्ज की आवाज़ सुनाऊंगा. अगर मैंने उसको उसकी हाफ सुनानी है 1000 से, तो मैं 500 मेल्स की आवाज़ सुनाऊंगा, which would be somewhere here, which would be somewhere here. इट इज़ लेस देन 500 हर्ट्ज. ये आवाज़ सुनाऊंगा तो उसको फील होगा कि उसने हाफ फ्रीक्वेंसी फील सुनी है इस दूसरी आवाज़ में. ठीक है जी. तो सिमिलरली अगर मैं 3 टाइम्स उतनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ, तो दैट गोज़ टू बेसिकली 9250 हर्ट्ज. नॉट अगर हम यहाँ पर खाली 1000 से 2000, 2000 से 3000 पर आते, तो 3000 हर्ट्ज पे नहीं जा रहा, दैट इज़ परसेप्चुअली अराउंड 9000 हर्ट्ज, 9250 हर्ट्ज. तो ये चीज़ हमें क्या दिखा रही है कि हम ज़्यादा सेंसिटिव हैं. अगर मैं इस पूरी बात का एक सादा कंक्लूजन निकालूं, तो हम ज़्यादा सेंसिटिव हैं फ्रीक्वेंसीज पे ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम. क्योंकि अगर आपको याद हो, आपके के सारे जो फॉर्मेंट्स हैं, काम के फॉर्मेंट्स जिससे मानी में फ़र्क पड़ता है, वो सारे फॉर्मेंट्स 1000 हर्ट्ज से नीचे नीचे के अंदर तकरीबन 1000 से 2-3 हज़ार हर्ट्ज के अंदर अंदर हम कवर कर लेते हैं. सो हम इस 1000 से 2000 3000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज, 5000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज में हम बहुत सेंसिटिव हैं, स्पेशली लोअर देन 1000 हर्ट्ज. उससे ऊपर हम इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हैं, हम उससे आगे रफ अप्रॉक्सीमेशन कर रहे होते हैं फ्रीक्वेंसीज की. हमारा कान रफ अप्रॉक्सीमेशन कर, तो वो डिफरेंस इतना नहीं फील कर सकता. कोई आवाज़ आपने अभी चलाई, लेट्स से 150 हर्ट्ज, आपने उसको 155 हर्ट्ज कर दिया, सडनली यू फील अ डिफरेंस, ये चेंज हुआ है. यही काम आपने जाकर जो है वो लेट्स से 15, ये लेट्स से मैं नीचे ले आता हूँ, 12000 हर्ट्ज पे किया, 12050 हर्ट्ज पे आपने किया एंड 12055 हर्ट्ज चलाया, आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा. यू गोना फील द सेम साउंड, बिकॉज अब वहां पर आप सेंसिटिव नहीं हैं डिफरेंस करने में. सो मेल स्केल बेसिकली मैप कर रहा है हमारी परसीव्ड फ्रीक्वेंसीज को एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज के ऊपर. ये तब समझ में आता है जब हम डिफरेंसेस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ले रहे हों. एब्सोल्यूट सेंस में इसकी इतनी सेंस नहीं बनती है. मैं ये नहीं कह सकता कि जी 2600 मेल्स इज इक्वल टू लेट्स से कितना बन रहा है ये 6000 हर्ट्ज. ये ऐसा नहीं कहना इतना सही. उसकी वजह ये है कि फिर 6000 हर्ट्ज का रेफरेंस पॉइंट क्या है, यानी वो हमें नहीं मालूम. जिस तरह ये बना है स्केल पूरा, ये डिफरेंसेस की बेस पर बना है, विच डिफरेंसेस आर perceived to be equal when placed at different places in your at different frequencies in your spectrum. ठीक है, I hope this is clear. अब हम आ जाते हैं जनाब साउंड इंटेंसिटी के ऊपर, विच इज़ एसेंशली द लास्ट टॉपिक दैट विल बी कवरिंग टुडे. सो साउंड इंटेंसिटी, जिसको हमने बात शुरू की थी, साउंड वेव्स आर इंट्रोड्यूस इनटू अ मीडियम बाय अ वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वी नो दैट. फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है, गिटार स्ट्रिंग है, वो आपने पुल की है और वो हिल रही है और उससे ये प्रोड्यूस हो रही है. सो एनर्जी इज कैरिड बाय द डिस्टर्बेंस वाज ओरिजिनली इम्पार्टेड टू द मीडियम बाय द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग या बाय अ डायफ्रेम या बाय योर वोकल apparatus. So the amount of energy that is transferred to the medium is dependent on the amplitude of the vibrations. यानी अब आप देख लीजिए ना कि जितना जोर का धक्का लगाएंगे उस आवाज़ को, उतनी ही ज़्यादा आप ये कंप्रेशन प्रोड्यूस करेंगे. ये सब बातें हम इससे पहले कर चुके हैं. सो हियर यू सी अ लो एम्पलीट्यूड, लेस कंप्रेशन एंड लेस एनर्जी. सो इस साउंड की इंटेंसिटी कम है. Whereas here you see very strong compressions and very rarefied rarefactions. और लिहाजा इसका एम्पलीट्यूड भी हाई है, इसका प्रेशर भी हाई है, इसकी एनर्जी भी हाई है, इसकी पावर भी हाई है. ठीक है, तो ये हाई इंटेंसिटी की हमारी वेव होगी.
Alright, so the amount of energy that is transported past a given area of the medium per unit of time is known as the intensity of the sound wave. ठीक है, ये बात हम इससे पहले भी कर चुके हैं. ये intensity is energy per passing through a given area per unit time. ठीक है, ये इसकी intensity कहलाती है. So the greater the amplitude of the vibrations of the particles of the medium, the greater the rate at which energy is transported through it, and the more intense the sound wave is. ठीक है, जितनी ज़्यादा energy होगी उतनी ज़्यादा जो है वो उसमें से energy गुजरेगी, उतनी ज़्यादा wave form जो है वो intense होगी. So intensity is basically energy per unit time per unit area. And as energy per unit time is power, so basically intensity is power over area. So it's power passing through area. ठीक है, ये हमारी इंटेंसिटी की डेफिनेशन है और इसकी यूनिट्स जो हैं वो वाट्स पर मीटर स्क्वायर हैं जिसकी हमने बात की थी. ये इसके एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं, वाट्स पर मीटर स्क्वायर. अच्छा, so as the sound wave carries its energy through a two-dimensional or three-dimensional medium, the intensity of the sound wave decreases with increasing distance. So हमने ये बात पहले की थी, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ की भी बात की थी कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हमारी जो एनर्जी है वो रिड्यूस होती चली जाती है. इसी वजह से किसी एक्सप्लोजन से इवन थोड़े से फासले पर, यानी एक शख्स थोड़ा सा करीब खड़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा फासले पे खड़ा है, एक के ईयर ड्रम्स डैमेज हो जाते हैं, दूसरे के नहीं होते लेट से. और वो उसकी वजह ये है कि ये यहाँ पर जो है वो इन्वर्स लॉ के थ्रू जो है हमारी एनर्जी कम हो रही है, इंटेंसिटी साउंड वेव की कम हो रही है. So the decrease in intensity with increasing distance is explained by the fact that the wave is spreading over a circular या 2 dimensions में या 3 dimensions में या spherical surface. ये बात भी हमने उस पर डिस्कस की थी कि यूं आउटवर्ड साउंड वेव जो है वो ग्रो कर रही है, तो दस उसकी जो साउंड वेव की जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एक बहुत बड़े सरफेस एरिया के ऊपर. सो यहाँ पर आप अब उस चीज़ को पूरी तफसील से देख रहे हैं. सो फॉर अ स्फेरिकल साउंड वेव जो पूरी तरह से स्फेरिकल हो, द इंटेंसिटी इन द रेडियल डायरेक्शन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन जो आपको नीचे नज़र आ रही है. सो हियर p इज द साउंड पावर and AR is the surface area of a sphere of radius r, and thus the sound intensity decreases as 1 over r square from the center of the sphere. तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो स्प्रेडिंग हो रही है ये बेसिकली क्योंकि एरिया के ऊपर हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रही है, लिहाजा आपकी जो पावर है वो उस हिसाब से कम होती चली जा रही है और इंटेंसिटी भी ऑब्वियसली कम होती चली जा रही है. रिमेंबर, इंटेंसिटी इज पावर ओवर एरिया. सो दिस relationship, this is known as the inverse squared law, and the intensity at point 2r is essentially just 1/4 of the intensity at the point A, क्योंकि ज़ाहिर है अब ये 4 में डिवाइड हो गई. एंड सिमिलरली द पॉइंट 3r ये 1/9 ऑफ द इंटेंसिटी एट पॉइंट A बन चुकी है. सो बहुत तेज़ी से ये इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है. तो तब भी अगर कोई साउंड बहुत दूर तक चली जाए और वो अपनी इंटेंसिटी को वहाँ तक कैरी करवा दे, दैट मीन्स कि वो अपने सोर्स पर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक साउंड थी, बहुत इंटेंस साउंड थी. एंड सिमिलरली वी कैन बेसिकली यूज़ दिस इनवर्स स्क्वायर लॉ टू कैलकुलेट कि उसके सोर्स के ऊपर उसकी इंटेंसिटी कितनी थी. ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई. सो अब आपको इंटेंसिटी समझ में आ गई, उसके एब्सोल्यूट यूनिट समझ में आ गए और इनवर्स स्क्वायर लॉ समझ आ गया. अब अगली इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं. यहाँ पर हम अपनी परसेप्शन के अंदर दोबारा वही वाली बात लाते हैं, हम अपनी परसेप्शन के अंदर लीनियर नहीं हैं साउंड की इंटेंसिटी की परसेप्शन में. जैसा कि हम फ्रीक्वेंसी की परसेप्शन में लीनियर नहीं थे, इंटेंसिटी में भी नहीं है. तो लिहाजा दो आवाज़ों के बीच में जो वॉल्यूम का डिफरेंस है वो भी लीनियरली नहीं बढ़ता. ऐसा नहीं है कि दो आवाज़ें जो बहुत फेंट आवाज़ें हैं उसमें अगर डबल आवाज़ की है तो हमें वॉल्यूम का उतनी फ़र्क फील हो, और अगर बहुत दो लाउड आवाज़ें हैं और उसमें वॉल्यूम का डिफरेंस हुआ है तो हमें उतना ही फ़र्क फील हो. सो वही डिस्टेंसेस वाली बात जो अभी फ्रीक्वेंसी में करके आए थे, वही डिस्टेंसेस वाली बात यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी लॉगरिथमिक स्केल है. तो हम करते क्या है कि हम सबसे पहले एक रेफरेंस बना लेते हैं, जैसे कि मेल में बनाया था. मेल के अंदर 1000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का रेफरेंस बनाया था. यहाँ पे हम रेफरेंस बना रहे हैं द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग का. ये फेंटेस्ट साउंड है जो कि टिपिकल ह्यूमन ईयर विच इज़ मतलब अनडिफेक्टेड ईयर जो बिल्कुल सही है वो डिटेक्ट कर सकता है, और वो है 1 पिको वाट पर मीटर स्क्वायर. सो 1 इंटू 10⁻⁻12 वाट्स पर मीटर स्क्वायर. ये आपने याद रखना है. दिस इज योर आई नॉट. So this is the sound that will displace the particles of air by 1 billionth of a centimeter. ये इतनी फेंट साउंड है कि ये पार्टिकल्स ऑफ एयर को 1 बिलियंथ ऑफ अ सेंटीमीटर जो है वो डिस्टर्ब करेंगे. सो रफली दिस इज लाइक अ मस्कीटो फ्लाइंग 3 मीटर्स अवे फ्रॉम योर ईयर. उतनी आवाज़ है जो इसमें प्रोड्यूस हो रही है. ये हमारा
थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है, बस यहाँ से हम तकरीबन परसीव करना शुरू करते हैं. सो वी कंसिडर दैट द रेफरेंस पॉइंट. और अब इसके रेफरेंस में देखेंगे कि कोई आवाज़ कितनी ऊंची है. अब मसला ये है कि जब इसके रेफरेंस में देखना शुरू करते हैं तो जो लाउडेस्ट साउंड्स है वो बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड्स हाई हैं, तो लिहाजा हम लॉगरिदमिक स्केल यूज़ करके इसको कंप्रेस कर देते हैं. सो the most intense sound that the ear can safely detect is more than 1 billion times more intense than the threshold of hearing. तो अब आपको समझ में आ गई ये बात कि ये हमारा जो है ना ये रेंज बहुत बड़ी है, तो इसको लाना पड़ेगा लॉग पर इसकी सेंस बनाने के लिए. So the human ear can detect a large range of intensities. Therefore we use a logarithmic scale which is again based on powers of 10 जो यहाँ यूज़ करते हैं. By the way, powers of 10 कोई हमारी log scale की मजबूरी नहीं है, आपको natural log के scale भी बहुत मिलेंगे. So the scale for measuring the intensity is known as the Bell scale or the decibel scale, which is defined as this. So I is equal to 10, which is जिससे डेसी की वजह से 10 आ रहा है, वरना this is just log base 10 of I, जो भी आपकी इंटेंसिटी है उस साउंड की जिसके आप बेल्स निकालना चाह रहे हैं या डेसिबल्स निकालना चाह रहे हैं, divided by I naught, which is the reference. So this will always be 1 into 10 to the power minus 12 watts per meter square. दिस वुड बी द साउंड जिसके आप डेसिबल्स निकालना चाहते हैं, और ये फॉर्मूला आपको मैप कर देगा इंटेंसिटी, रॉ इंटेंसिटी यानी वॉट्स पर मीटर स्क्वायर से डेसिबल्स के ऊपर. सो दिस इज बेसिकली योर मैपिंग फंक्शन फ्रॉम योर वॉट्स पर मीटर स्क्वायर टू योर डेसिबल स्केल. ठीक है जी, समझ में आ गया. अच्छा जनाब, so your threshold of hearing is assigned a sound level of 0 decibels. ठीक है, obviously you can see here कि ये 1 आएगा इसके अंदर, log base 10 of 1 आपके पास 0 हो जाएगा. this will be 0 decibels. 10 times more intense than this sound is essentially assigned your 10 decibels. ठीक है, so which is 1 into 10 to the power minus 11 watts per meter square is 10 decibels. so ये 10 times ज़्यादा intense है. by the way, आपको अपने तौर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा. मैं कोई भी वॉट्स पर मीटर स्क्वायर के अंदर आपको वैल्यू दूं तो आप उसको ये फार्मूला लगाकर डेसिबल्स में कन्वर्ट कर सकते हो. तो इस चीज़ की अपने तौर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है, इसके इन्वर्स की, इसके रिवर्स की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ये अब आपका अपना काम है. 100 times more intense sound, which is 1 into 10 to the power minus 10 watts per meter square, would be 20 decibels. ठीक है, 1000 times more intense sound, which is 1 into 10 to the power minus 9 watts per meter square, is assigned 30 decibels. ठीक है, इसमें डालते जाएं और आपको बड़े आसानी से ये निकलते जाएंगे और ये आपको समझ भी आ रहा है कि किस तरह से हो रहा है. So if one sound is 10 times more intense than another sound, then it has a sound level that is 10 times more decibels. So if it is 10 raised to power x times more intense, then it has a sound level that is 10 multiplied by x times more decibels than the less intense sound. So अगर ये जुमला कंफ्यूज कर रहा है तो बेशक ना पढ़ें, जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ बन गई है वो काफ़ी है. ठीक है, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो यस, दिस इज एसेंशली व्हाट द लॉग स्केल डज, कि एक्सपोनेंशियल्स को लीनियर्स में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं, प्रोवाइडेड कि आपने बेस सेम रखी है. अच्छा जनाब, ये हैं अब कुछ रेफरेंस साउंड्स, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके कि हम इस स्केल पे किन चीज़ों की बात कर रहे हैं. और यहाँ पर अगेन फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स देनी है, लेकिन बेफिक्र रहें. वो याद है आपको शुरू में मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये बात कही थी कि आप बेफिक्र रहें, हाई फ्रीक्वेंसीज आपके कानों को कुछ नहीं कहेंगी. जो आपके कानों को नुकसान पहुँचाएगी चीज़ असल में वो हाई वॉल्यूम होगा. तो अब हम उस पॉइंट के लिए तैयार हैं. अब हम उस पॉइंट को समझने के लिए तैयार हैं कि किस तरह से जो वॉल्यूम ऑफ साउंड है, दैट्स द थिंग विच actually has the capability of destroying or rupturing something. ठीक है, इसकी बात आगे जाकर हमने अभी और भी करनी है, अभी तो ग्लास भी तोड़ना है हमने आगे जाकर. बट खैर, एनी हाउ, सो योर थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग is 1 into 10 to the power minus 12 watts per meter square, which is 0 decibels, and its number of times which that is greater than the threshold of hearing is basically 1. It's the same as the threshold of hearing. 10 डेसिबल की साउंड ऐसी फील होती है जैसे पत्ते जो है ना वो रसल करने की आपको आवाज़ आ रही होती है, पत्तों की जो आपको सरसराहट सुनाई दे रही होती है. 20 decibels is typically where you whisper. By the way, you can always install a decibel meter on your phone, or you can basically play with these things yourself. उसका कोई ग्राफ वगैरह हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना instantaneously तो बहुत उसमें वेरिएशंस आपको फील होंगी. Your normal conversation is typically carried out at around 1 into 10 to the power minus 6 watts per meter square, which is 60 decibels. Your busy street traffic, जबकि आप वहाँ खड़े होकर measure कर रहे हो, is around 70 decibels, although कि वो horn बजता है तो इससे काफ़ी ऊपर चली जाती है. Your vacuum cleaner is roughly 80 decibels. Large orchestra is around 100 decibels. Walkman at maximum level, अब ये again it's just कोई fix नहीं, जाहिर है हर Walkman का अपना अपना है, but yeah, roughly
this range. Front rows of a rock concert reach around 110 decibels. उससे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं. At 130 decibels, which is basically this amount of time greater than the threshold of hearing, आपको you start getting pain in your ears. So this is known as the threshold of pain. A military jet taking off, and when you're standing very close to it, produces 140 decibels, and at 160 decibels, around 160 decibels, you get instant perforation of the eardrums. इस पे कानों के पर्दे फट जाते हैं. So this is what it takes to basically perforate the eardrums. Very loud sounds, very intense sounds. ठीक है, और ये समझ भी आता है, उतना जोर वो साउंड लगा रही है पर्दे के ऊपर, तो पर्दा इवेंचुअली, जैसे एक स्विंग है, एक पेंडुलम है, आपने उसमें इतना जोर से धक्का दिया कि वो रस्सी टूट गई जिससे वो लगा हुआ था. That's essentially what's happening here. 194 decibels is considered to be the upper limit on undistorted sound in air, relative obviously to this I naught at 0 degree Celsius. So ये pressures के ऊपर क्यों कहते हैं कि ये limit है undistorted sound की, क्योंकि इस sound की level पर जो आपका sound pressure बनता है वो इतना होता है कि हमारा जो rarefactions हैं वो nearly vacuum हो चुके होते हैं. They are almost vacuum. तो क्योंकि हमारे रेयर फैक्शंस वैक्यूम हो गए, इससे ज़्यादा अब हमारे रेयर फैक्शंस रेयर नहीं हो सकते और हमारे कंप्रेशंस इंटेंस नहीं हो सकते, तो लिहाजा प्रेशर की लिमिट मैक्स आउट हो गई. सो 194 डेसिबल से ज़्यादा अनडिस्टॉर्टेड साउंड नहीं एयर में ट्रैवल कर सकती एट 0 डिग्री सेल्सियस. हाउएवर इससे लाउड साउंड्स पॉसिबल है, लेकिन फिर वो सेकंड प्रोसेस है जो हमने दूसरा तरीका पढ़ा था, और वो तरीका था शॉक वेव्स का, जहाँ पे साउंड वेव्स बंच टुगेदर और अब उनके बीच में रिफ्लेक्शंस रही नहीं. इट्स वन मैसिव कंप्रेशन with very huge rarefactions on both sides of it. That one massive compression can then hit your ear with an intensity higher, with a relative intensity level higher than even 194 decibels. और अभी उसकी बात करते हैं. So here are some examples from the history जो कि आपको loud sound की examples मिलेंगी. So for example, the rock concert हमने बात की 110, 130 कहा था, ये ऊपर भी जा सकता है, 130, 145 decibels भी हो सकता है, depending on आप बैठे हुए कहाँ हैं. And this can really damage your hearing. गन फायर, अगर आप करीब खड़े हुए हैं तो गन शॉट जो है वो 145 to 155 डेसिबल्स तक की रिकॉर्ड हो सकती है. स्पेस शटल का लॉन्च तकरीबन अराउंड 165 to 170 डेसिबल्स होता है लिफ्ट ऑफ की पावर क्रिएट करने के लिए. सैटर्न 5 विच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट बूस्टर्स जो अब तक यूज़ किए गए हैं, वो 204 डेसिबल्स पे रिकॉर्ड किया गया था. मैंने आपको शुरू में वो एक सुनाया था ना, फैल्कन हैवी, that was recorded from a really massive distance, from like really large distance from the source of the rocket launch. अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों, अगर आप करीब खड़े होकर सुन रहे होते तो those people would not have probably survived it. Blue whale की जो call है, that can reach up to 188 decibels. So whales are pretty noisy animals. By the way, ये नीचे मैंने आपको एक example दी हुई है एक वीडियो की, इसमें एक अजीब सा odd सा ad है, that's why I did not include it here. वो like the guy who made the video created a very strange ad in the middle. So इस वजह से it was distasteful and I didn't do that. But लेकिन बाकी video is done pretty nicely. So if you want, you can basically just go and watch the video on your own. उसमें उसने काफ़ी sounds cover की हुई हैं with actual examples. But I'll be showing you another video, a short video right after this, जिसमें कुछ sounds मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा जो कि इन loud sound से correspond करती हैं. Obviously they are not that loud. We control the volume and हमारे जो equipment हैं वो एक खास loudness से ज़्यादा नहीं measure कर सकते क्योंकि साउंड क्लिप हो जाती है. अदरवाइज ये भी हम पढ़ेंगे जब हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करेंगे. बट एनी हाउ कुछ आपको एग्जांपल्स मैंने भी सुनानी है. बट या दिस इज अ गुड वीडियो एक्सेप्ट फॉर दैट डिस्टेस्टफुल एड. अच्छा जी, सो there is the Krakatoa volcanic eruption जो कि this happened in 1883 in Indonesia, in the island of Krakatoa. और इसको कहा जाता है कि this is probably the loudest sound ever reported in the known history. ये 100 miles from the source रिकॉर्ड की गई थी at 180 decibels. ठीक है, और यानी जिससे एस्टिमेट ये लगता है कि ये अपने सोर्स के ऊपर तकरीबन 310 डेसिबल्स की एक्सप्लोजन थी. इट वाज हर्ड 3000 माइल्स अवे फ्रॉम इट्स सोर्स, और 60 माइल्स अवे पे सेलर्स के जो ईयर ड्रम्स हैं वो रप्चर हो गए थे 60 माइल्स के फासले के ऊपर. डबल चेक इट वेदर इट्स, आई थिंक इट्स 45 माइल्स एंड अराउंड 60 किलोमीटर्स और समथिंग, या बट डबल चेक दैट. और क्योंकि ये इतनी पुरानी हिस्ट्री नहीं है, इट्स जस्ट 1883, और बैरोमीटर्स वगैरह पूरी दुनिया में उस वक्त यूज़ होते थे फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए कि बारिश होनी है नहीं होनी है.
तो उन बैरोमीटर्स पे इससे बहुत फासले के ऊपर ये मेजर हुआ था कि देयर वाज अ सडन इंक्रीज इन लाइक देयर वाज फ्लक्चुएशन इन एयर प्रेशर, जिससे हमें ये बात भी पता लगी थी कि वैसे तो ये गन शॉट की तरह का एक धमाका होता है ना जब जब एक वोल्केनिक इरप्शन होती है। आई विल शो यू अ वोल्केनिक इरप्शन इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन ये जो अगला क्लेम है ना कि ये 7 टाइम्स ओवर दुनिया के इर्द गिर्द ये आवाज़ घूमी, सो इट वाज सो इंटेंस दैट द साउंड वेव बेसिकली कैरिड अराउंड द ग्लोब फॉर 7 टाइम्स बिफोर डिसिपेटिंग। ये बेसिकली बैरोमीट्रिक की बेस पे क्लेम है कि बार बार ये फील होता रहा एट रेगुलर इंटरवल्स कि जी अब फिर फ्लक्चुएशन शुरू हो गई है, फिर फ्लक्चुएशन, एक बड़ी फ्लक्चुएशन आई है, फिर फ्लक्चुएशन आई है। सो दैट वाज रिकॉर्डेड 7 टाइम्स, सो इट्स क्लेम्ड कि ये 7 टाइम्स ओवर, इतनी स्ट्रॉन्ग ये साउंड वेव थी कि इट ट्रेवल 7 टाइम्स ओवर अराउंड द ग्लोब। बट अगेन दैट्स अ क्लेम, so I cannot be more precise about that. So the loudest sound ever created by humans, not by natural causes, is said to be the atomic bomb blast over Nagasaki and Hiroshima. और ये अराउंड कोई 250 डेसिबल्स के ऊपर हम इनको एस्टिमेट करते हैं। एंड देन जो मीटियोराइट स्ट्राइक है ये वाली, जिसका हमने यहाँ जिक्र किया है 1908 की, सो दिस वाज अ ह्यूज एक्सप्लोजन, और इसकी कंपेरेबल इफेक्ट जो है वो तकरीबन इतना था, और विच इज़ लाइक अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1000 मेगाटन्स ऑफ अ बॉम्ब। सो दिस इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द लाउडेस्ट वन टाइम इवेंट इन द हिस्ट्री की, जो एकदम जो इतनी हाई साउंड प्रोड्यूस हुई। सो इन द नेक्स्ट वीडियो बेसिकली आई विल बी शोइंग यू 3 साउंड्स। अपना वॉल्यूम थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लीजिए, अगर बहुत ही ऊंचा करके मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, ऑल्दो कि आई डोंट थिंक कि आप ऐसा कर रहे होंगे, नहीं आपको करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम नीचे कर लें जब आ जाएगी। तो पहली आवाज़ लाइटनिंग की है, इट्स अ सीरीज ऑफ 5 साउंड्स, आई एम जस्ट शोइंग यू 3, जिसके अंदर एक मीटियोराइट स्ट्राइक है, एक वॉल्केनिक इरप्शन है, और बेसिकली एक लाइटनिंग स्ट्राइक है। और वो आवाज़ें आपको ताकि अंदाज़ा हो जाए किस तरह की होती हैं, एंड देन विल जस्ट कंक्लूड द लेक्चर। Oh, that jumped right over my head. Watch out for the shock, it's coming. Исключительно качественный сервис. 380-00-10. Два берега. 380. Нихуя себе, это что такое? Что-то он упал куда-то, да? Ебать, а! Что это хуйня? Никит, что это такое? Вот он, похоже, оттуда ушел, ебанул. ऑल राइट जी, सो आपने सुन ली आवाज़ें, आपको अंदाज़ा हो गया किस तरह की लाउड साउंड्स होती हैं। देयर आर अदर रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट, यू कैन बेसिकली फॉर योर ओन क्यूरियोसिटी यू कैन वॉच अदर थिंग्स। आज हमने अब अपनी इतनी बेसिस कंप्लीट कर ली हैं कि अगली दफ़ा से हम अब टाइम डोमेन मेथड्स की एनालिसिस की तरफ जा सकते हैं। तो अब अपने पास मैटलैब इंस्टॉल कर लीजिएगा। आई विल बी शोइंग यू एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट वीडियोस, और अब आपकी अगली असाइनमेंट्स जो आने वाली हैं उसमें भी टाइम डोमेन मेथड्स की जल्दी एक असाइनमेंट आ जाएगी। पहले तो एक प्रोग्रामिंग असाइनमेंट हम रिलीज़ कर रहे हैं, और उसके बाद यू विल बी गेटिंग योर मैटलैब असाइनमेंट्स। तो इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते चले जाएं, इन चीज़ों को साथ साथ समझते जाएं। होपफुली यू आर एंजॉइंग इट दस फार। इंशाल्लाह वी होप कि यू विल बी एंजॉइंग इट ऑल द वे टू द एंड ऑफ द सेमेस्टर। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।